welcome to my class. Today we will have an exclusive lecture on the very important topic in Pakistan studies. So if anyone intends to clear his or her thoughts and understanding regarding pre-partition era, this lecture will help you to understand the things properly. So अॼो को lecture असांजो आहे the how did British govern India, what kind of measurements, what kind of constitutional amendments and reforms they introduced, and what kind of policies were put into practice in order to control and administrate and monitor the overall internal and external affairs of India. ऐं उन में कहिड़ो शयूं जेके आहिनि सो उहे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में नाफ़िज़ कयूं. सो उन्हनि शयुनि सभिनि खे असांखे सम्झण में अॼु असांखे ॾाढी हिकिड़ी मदद मिलंदी. सो आई हैव शेयर्ड विद यू दी स्क्रीन. आई होप सो कि शयूं तव्हांजे लाइ ईज़ी थींदियूं. Basically, the theme of today's lecture is the evolution of British Indian government in India. So that is regarding the evolution of British government in India. Therefore, this lecture will be very much important today. As I told you that today's lecture is important, and the theme of this lecture is the evolution of British Indian governance, or the evolution of British government in India. Basically, we will try to explore the administrative reforms that were put into practice by British government and the Muslim political awareness that started from 1861 and up to 1911, and कुछ शयूं ॿियूं बि लेक्चर में असां में ऐड कंदासीं. इवन दिस विल गो टू 1947. So inshallah, all these things will be exclusively discussed in that. हाणे अचूं था हिन में त which things are by far the most important. सब खां पहिरियां the first part of this lecture will be the foundations of administrative reform. जेके बि reforms हुआ, whatever reforms in India were introduced, असां कोशिशि कंदासीं पहिरियां उन्हनि खे डिस्कस करे वठूं. That is regarding the foundations of administrative reforms in India, especially the 1861 and 1892 Councils Act, which are simply known as Indian Councils Act of 1861 and Indian Councils Act of 1892. These two are very much important. So there is a comparison and there is a quick analysis of these two Indian Councils Act of 1861 and 1892. These two acts are basically Council Act, which we call Councils Act, are simply known as the basic acts which introduced the limited concept of democracy in India. जेको 1861 जो कॉन्स्टिट्यूशन आहे या 1892 जो आहे, इन्हनि हिकिड़ी डेमोक्रेसी खे त इंट्रोड्यूस कयो. मतिलबु फ्रॉम दीज टू एक्ट्स द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी वॉज एंट्रेंज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स, ऐं उनखां पोइ अॻिते हली करे उहा वरी वधीक मज़बूत थिए थी. फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस जेको इंडियन काउंसिल्स एक्ट हुयो 1861 जो, इट बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड the first step towards representative government. Second thing, it introduced executive council, which had 5 members, and imperial legislative council, which was varying from 6 to 12 members. At least 50% British officials were required in that, and commander-in-chief added as an extraordinary member to the governor's council. So this might be difficult for many of the students to grasp over these things. हाणे हिनखे सम्झण जे लाइ मां तव्हांखे थोरो, एज़ आई टोल्ड यू दैट हिस्ट्री इज़ मोर अबाउट कनेक्टिविटी, त मां तव्हांखे कनेक्शन हिकिड़ो प्रोवाइड करे ॾियां. आई हैड इन्फॉर्म्ड यू इन आर अर्लियर लेक्चर्स कि जॾहिं अंग्रेज़ हिते आया ऐं हिकिड़ी 1857 में जंग लॻे थी. 1857 जी जंग में जीअं मूं सर सैद अहमद ख़ान ते तव्हांखे लेक्चर ॾिनो त ॿुधायो हुयो, 1857 जी जेका जंग लॻे थी उहा जंग इन जे करे इम्पॉर्टेंट हुई छो जो इन जंग खां पोइ ब्रिटिशर्स खे फील थियणु लॻो त मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल, एंड इन दी वेक ऑफ दोज़ वेरी इंसिडेंट्स जेको अपराइज़िंग हुई 1867 जी, सर सैद अहमद ख़ान हैड रिटन अ बुक असबाब बग़ावत हिंद, काज़िस ऑफ इंडियन रिवोल्ट. उन में उन अंग्रेज़नि खे चयो हो त जेका बग़ावत थी आहे उनजो जेको बेसिक रीज़न आहे, this is because of your separateness or aloofness from Indian people. You do not indulge yourself with British Indian people, इन जे करे you don't know ब्रिटिशर्स खे चई त उन्हनि खे सां कीअं डील कजे, उन्हनि सां कीअं तव्हां उथवे करे सघो था, हाउ यू ट्रीट देम, हाउ डू दे थिंक, वाट दे थिंक, यू डोंट नो.
इन जे करे हुननि खे चयो त उन्हनि खे बि तव्हां जेको आहे सो जेके इंडियंस आहिनि उन्हनि खे बि पंहिंजी गवर्नेंस में शामिलु कयो पियो। इन जे करे 1861 में जेको इंडियन काउंसिल एक्ट आयो त पहिरियों भेरो हिकिड़ी नंढड़ी स्केल ते ई The concept of representative government in India was introduced. Representative जो मतिलबु आहे त हाणे जेको आहे सो इंडिया जा माण्हू बि गवर्नमेंट जो कंहिं हद ताईं हिसो हूंदा। सो पहिरियों इहो मेजर स्टेप हुयो। मूं तव्हांखे ॿुधायो त जेको गवर्नर जनरल हूंदो हुयो, जेको कंपनी जो गवर्नर जनरल हूंदो हुयो, ठीकु आहे, पहिरियां गवर्नर हुयो, देन इट बिकेम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जी हिकिड़ी काउंसिल हूंदी हुई, ठीकु आहे। उन काउंसिल में बेसिकली 2 शयूं हूंदियूं। हिकिड़ी हूंदी उनजी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जंहिंजा 5 मेंबर हूंदा, जंहिंजो हेड गवर्नर जनरल पाण हूंदो। ॿी वरी उनजी हूंदी हिकु एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज़ मोर रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेसी। ॿी वरी हूंदी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जंहिंजे तौर खे अॼु सिंपली तौर ते यू कुड कॉल इट नेशनल असेंबली। सो नेशनल असेंबली में 6 खां 12 मेंबर हुआ, जंहिंजो पुराणो नालो हुयो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐं जेका ब्यूरोक्रेटिक पार्ट हुओ उनखे असां चवंदासीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। प्रीवियसली इहे सभई जा सभई जेके मेंबर्स हुआ देवर ब्रिटिशर्स, यादि रखिजो। उहे जेके मुंड में जेके मेंबर्स हुआ उहे सभई ब्रिटिशर्स हूंदा हुआ। सो दैट थिंग वॉज सपोज टू बी प्रॉब्लमेटिक। ऑन दी अदर हैंड आर ऑन द कंट्ररी, हाणे जेको इंडियन काउंसिल एक्ट आयो, इट इंट्रोड्यूस्ड, इट गेव सम स्पेस टू इंडियन पीपल। इन जे करे असां चऊं था त जेको नंढड़ी सतह ते जेको कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी आयो, दैट वॉज अपहेल्ड इन 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। हाणे चऊं था, अच्छा, उनखां पोइ वरी तक़रीबन 31 साल लॻंदा, पोइ वरी छा थो थिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इंट्रोड्यूस थो थिए। अच्छा, इट एक्सपांडेड काउंसिल्स एंड इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इनडायरेक्ट जेको इलेक्शन जो मेथड हुयो दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, द सिस्टम रिमेंड हाईली रिस्ट्रिक्टिव फॉर माइनॉरिटी पॉपुलेशन। ॾाढो हिकिड़ो रिस्ट्रिक्टिव क़िस्म जो जेको आहे सो हिननि ॾिनो, ऐं उन में माइनॉरिटीज़ खे एज सच का रिप्रेज़ेंटेशन मिलियल न हुई। अच्छा, इलेक्शन जेके हुयूं ज़्यादातर नॉमिनेटेड हुयूं थ्रू बॉडीज़ लाइक बार काउंसिल, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स। हाणे इहो छा आहे, मतिलबु देयर वॉज अ डेमोक्रेसी, but how could we come to know that this democracy was restricted या limited? This was restricted, this was limited. उन जो रीज़न इहो आहे त जेका उन वक़्तु इलेक्शन थिए पई, दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन। हिकु त उन इलेक्शन में कहिड़ा माण्हू वोट ॾेई सघनि था। वोट जो जेको स्केल हुयो दैट वॉज वेरी नेरो, दैट वॉज वेरी पिच्ड। कीअं उहो नेरो ऐं पिच्ड हुयो, उहो ईअं हुयो बेटा त जेका 1892 जो काउंसिल एक्ट आयो, उनमें चयो वियो त उहे माण्हू वोट ॾींदा जेके बार काउंसिल्स जा मेंबर आहिनि, जेके पंहिंजो यूनिवर्सिटीज़ जी सिंडिकेट्स जा मेंबर्स आहिनि, जेके ग्रेजुएट्स आहिनि। इंडिया में उन वक़्तु त ग्रेजुएट्स तमामु घटि हुआ, 9 ॼणनि जे बराबरि जेके ग्रेजुएट्स आहिनि, प्लस में जेके वापारी जेके काउंसिल्स आहिनि उन्हनि जा जेके हेड आहिनि या जेके वापारी काउंसिल जा मेंबर्स आहिनि, ओनली दे वर गिवन दिस चांस टू कास्ट दी वोट। ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, जॾहिं वोट ॾियण जो जेको जेके असां सिंपली वी कॉल इट फ्रेंचाइज़, जॾहिं फ्रेंचाइज़ ई लिमिटेड आहे त ऑटोमेटिकली तव्हांजी रिप्रेज़ेंटेटिव उहा हिकिड़ी लिमिटेड थी वई। ऐं नॉमिनेटेड माण्हू ई हुआ हू कुड गो फॉर आर हू कुड वेंट फॉर इलेक्शन या इलेक्टोरल प्रोसेसिस। ठीकु आहे, ऐसे आई होप सो कि तव्हांखे ज़रूरु ॻाल्हि सम्झ में ईंदी। हिना इज़ आल्सो देयर, एज़ाज़ एंड हिना, लेट मी एड हिना, त पोइ मां तव्हांखे वेलकम करे वठां थो। आई होप सो कि देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम एट दी साइड ऑफ हिना। अच्छा, एज़ाज़ या केर बि तव्हां, मां प्लीज़ इनखे रिकॉर्डिंग मूड ते रखिजो, में बि तव्हांखे पोइ कमु अचे। अदरवाइज़ आई विल शेयर विद यू द वीडियो, बट उहा मां अपलोड करे मोकिलींदुसि। आई टोल्ड यू दैट 1892 में डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट उहा जेका डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कई वई बेटा, उहा लिमिटेड हुई, यानी तमामु घटि माण्हू हुआ हू कुड कास्ट देयर वोट। जेके बार काउंसिल्स जा मेंबर्स हुआ, जेके सिंडिकेट जी यूनिवर्सिटी जी सिंडिकेट जा मेंबर्स हुआ, जेके हिकिड़ा लैंडलॉर्ड्स हुआ, उन्हनि खे थोरो घणो वोट जो हक़ु हुयो। ऐं ॿियूं जेके ख़ासि तौर ते जेके शहरनि में वापारी तंज़ीमूं आहिनि, उन्हनि खे हिकिड़ो हक़ु हुयो त उहे वोट ॾियनि। नॉट एवरी वन वर सपोज टू कास्ट देयर वोट। अच्छा, इहो जेको इलेक्शन थिए थी 1892 में, नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम गॉट इलेक्टेड। सीट्स केतिरियूं बि हुयूं बहरहाल, नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम गॉट इलेक्टेड इन 1892 जेका इलेक्शन थिए थी। ठीकु आहे, हाणे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, हेॾे वॾे मुल्क में के मुस्लिम्स 25% हुआ, बट दैट वॉज अ कंसिडरेबल माइनॉरिटी, छो जो इंडिया हिकिड़ो वॾो मुल्क हुयो, त उन्हनि मां को हिकिड़ो बि इंडियन न हुयो हू कुड गेट इलेक्टेड। हाणे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, दैट थिंग वॉज प्रॉब्लमेटिक एंड मुस्लिम्स डिड नॉट लाइक
दिस आइडिया एट ऑल। इहा शइ थोरी सम्झिजो त 1892 में डेमोक्रेसी आई, लिमिटेड डेमोक्रेसी आई, पर उन लिमिटेड डेमोक्रेसी में बि मुस्लमान जेके हुआ दे कुड नॉट गेट एनी चांस टू इलेक्ट देयर मेंबर। एसि ताईं आई होप सो के सम्झ में अचे थो। थोरो मान खे अॻिते वठी वञा त वाट वर दी एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव जेको डिज़ास्टर्स असां वटि हुयो उहो कहिड़ो हुयो। हिकु, देयर वॉज एन एंट्री एज रिडक्शन। जेको लॉर्ड लिटन हुयो उन 1880 में छा कयो, डिक्रीज द मैक्सिमम एज फॉर सिविल सर्विस एग्जाम्स फ्रॉम 21 टू 19। ठीकु आहे। सीवियरली हिंडरिंग जेको नेटिव कैंडिडेट्स फेसिंग लैंग्वेज एंड ट्रेवल बैरियर्स। हाणे थियो ईअं, इहा शइ थोरो घणो कीअं प्रॉब्लमेटिक थी वियो त माना जेके बि इंडियंस सिविल सर्विसिस में अचणु चाहींदा हुआ त उनजी जेका एज हिननि खे छॾी 21 खां उहा रिड्यूस करे छॾी 19 जी तरफ़। त इहा शइ कयां त इंडियन खे किथे फ़ाइदो बि थिए पई, बट दो छो जो इहो जेको लैंग्वेज जो बैरियर हुयो दैट वॉज वेरी हाई, इन जे करे पीपल वांटेड सम टाइम कि असांखे थोरो टाइम मिले लैंग्वेज सिखी वठूं। त इहो हिकिड़ो, अच्छा इंडिया में उन वक़्तु ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे ट्रेवल कॉस्ट हिकु त वधीक हुई, प्लस में ट्रेवल जूं फैसिलिटीज़ न हुयूं, त इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जंहिंजे करे माण्हुनि खे इहे आइडियाज़ जेके हुआ एतिरा बहितर न लॻा। देन प्रोविंशनल एग्ज़ामिनेशन्स जेके बि हुआ, कॉम्पिटेटिव सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन्स वर कंडक्टेड अक्रॉस 6 मेजर provinces। हाणे इहो यादि रखिजो which were the provinces, this might help you in descriptive way and this might be helpful to you in your interviews as well। बंगाल में उन जा जेके आहिनि सो एग्ज़ाम्स थींदा हुआ, बिहार में थींदा हुआ, ओडिशा में थींदा हुआ, NWFP में, CP मुंबई मद्रास में जेके उहे पोइ सिलेक्ट कंदा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर्स में। अच्छा, व्हाट वाज दी रिप्रेजेंटेशन जेको गैप हो, डिस्पाइट अ लार्ज रीजनल डेमोग्राफिक स्प्लिट 45% टू 55% जेके हुया तक़रीबन मुस्लिम तुन खां थोरो घटि हुया। दी 1892 इलेक्टोरल सेटअप कंप्लीटली फेल टू रिटर्न एनी मुस्लिम टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो। पर इनमें देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई विल शेयर विद यू। हाणे फ्रॉम देयर, हाणे यादि रखिजो, दिस इज़ वेयर द मुस्लिम पॉलिटिकल अवेकनिंग स्टार्टेड, कि डेमोक्रेसी आई, थोड़ी घणी आई, बट बहरहाल देयर वाज a democracy, a democratic system introduced in India, though it was on a limited scale. Not even a single Muslim got elected. From there, the Muslim political awakening started. मुसलमाननि सोचणु शुरू कयो त एॾे वॾे सेटअप जे अंदरि असां हिकिड़ी सीट बि नथा खणी सघूं। इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वी नीड टू टेक दिस इनटू सीरियस अकाउंट। त पोइ कीअं थिए थो, उनमें कुझु जेके टर्निंग पॉइंट्स आहिनि, आई बिलीव कि हिस्ट्री में अहिड़ा के वाक़िया थींदा आहिनि जेके तारीख़ जो मुकमल तौर ते रुख मुड़े छॾींदा आहिनि। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स दैट टेक प्लेस इन हिस्ट्री दैट अल्टीमेटली अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, या हिस्टोरिकल इवेंट्स जेके तव्हांजा अपकमिंग हूंदा आहिनि या फ्यूचर में जेके अचणा हूंदा आहिनि। ऐं इंडिया जी तारीख़ में ॿ अहिड़ा वाक़िया आहिनि, हिकु त पार्टीशन ऑफ बंगाल, ॿियो शिमला डेपुटेशन। दीज वर टू टर्निंग पॉइंट्स इन इंडियन मुस्लिम्स हिस्ट्री। ऐं उहा जेको पॉलिटिकल हिकिड़ो पंहिंजो ट्रेवल हुयो या पॉलिटिकल जेको ओवरऑल मुस्लमाननि जी एंटिटी हुई, उहा कंहिं हद ताईं इमर्ज बि थी आई ऐं उहा हिकिड़ी रीशेप बि थियणु लॻी। कहिड़ियूं शयूं हुननि में बेटा, मां थोरियूं तव्हांखे ॿुधायां। सिंस ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, त तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे बंगाल जो पार्टीशन, बट आई विल ट्राई टू गिव इट अनदर टच त तव्हांखे शयूं कुझु जीअं सम्झ में अची सघनि। आई हैड टोल्ड यू, कुझु शयूं मां वरी बि तव्हांखे सम्झाए सघां त उन वक़्तु जेको बंगाल हुयो इंडिया जो जेको हिकु त सभ खां अमीर सूबो हुयो, ऐं उहो आबादी में एतिरो वॾो हुयो जो बर्तानिया हिकिड़े सॼे मुल्क जी आबादी उन इंडिया जे हिकिड़े सूबे जे बि बराबरि न हुई, यानी हिन सूबे जी पॉपुलेशन एॾी वॾी हुई। जॾहिं पॉपुलेशन वधी त इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दी प्रोविंस अफेयर्स। ठीकु आहे, छो जो उन मैनेजमेंट खे सही नमूने सां डील करिणो हुयो, ऐं त हिकु त एरिया वॾो हुयो, पॉपुलेशन वधीक हुई, त उनखे प्रॉपरली स्मूथ वे में फंक्शन करण जे लाइ या एडमिनिस्ट्रेट करण जे लाइ देयर वॉज एन इनिशिएटिव टेकन बाय लॉर्ड कर्जन टू डिवाइड आर टू सेपरेट आर टू पार्टीशन आर टू सेग्रीगेट दी लैंड ऑफ बंगाल। पोइ डिवाइड थियो, उहो ईस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी में थी आहे ऐं वेस्ट बंगाल में जेके आहिनि सो हिंदू मेजॉरिटी में थी आहे। अच्छा, इट वॉज प्रिमिलरली देयर वॉज अ प्रिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव गोल, जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर मैनेजमेंट, बिकॉज जेका पॉपुलेशन ई बंगाल जी इट हैड एक्सीडेड 80 मिलियन पीपल। हाणे 80 मिलियन माण्हू खां वधीक जॾहिं पॉपुलेशन थी वञे त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे इट वॉज डिफिकल्ट। ॿियो, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन जो तमामु घणो थियो बेटा। इट एनेबल्ड ईस्ट बंगाल जेको ढाका ते रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीकु आहे, टू हैवली फोकस ऑन इट्स इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट।
प्रीवियसली जॾहिं बंगाल सॼो गॾु हुयो त ज़्यादा से ज़्यादा जेका हुई इन्वेस्टमेंट देट वाज इन कलकत्ता ऐं सराउंडिंग जेके विसिनिटी जा एरियाज़ हुआ, त जेको ढाका ऐं मुस्लिम जेका मेजॉरिटी एरियाज़ हुआ दोज़ वर बीइंग नेग्लेक्टेड, दोज़ वर बीइंग कंडोन्ड, एंड दिस इज़ देयरफॉर व्हेन ईस्ट जेको बंगाल बिकेम अ प्रोविंस, त मुस्लमान उते हुकूमत में अची विया। Muslims जेके आहिनि they introduced basic reforms over there and those reforms were having a very positive impact. ऐं इनमें हिकिड़ो मां हिकिड़ी शइ ॿुधायां, the partition through administration in intent reshaped the political landscape of subcontinent nationalism permanently. ऐं इहा बिल्कुलु हक़ीक़त आहे, उहो कीअं आहे थोरो मां तव्हांखे वरी ॿुधायां। नेशनलिस्टिक बैकलैश थियो, triggers to Swadeshi movement and intense political protest from the Indian National Congress. Indian National Congress did not like this idea. They said that it is the policy of British government to divide and rule. They have tried to divide the mother cow, and the land of Bengal was not supposed to be divided. If it's been divided, it is like putting a dagger in the back of Indian people. तो उन्होंने यो चो, तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हमारी पीठ के अंदर जो है सो उन्होंने खंजर चुबो दिया है, तो जाहिर सी बात है दे डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। इसका एक इम्पैक्ट जो था वो बहुत ही सीवियर था ऑन ओवरऑल। अच्छा, देन अगेन थोरो मां उनखे अॻिते खणी अचां, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स आई विल ट्राई टू शेयर विद यू दी डिटेल्स एज वेल, त जीअं तव्हांखे सो दैट योर आइडियाज़ कुड बेटर बी क्लियर। हाणे ॾिसो, बंगाल डिवाइड थी वियो, मुस्लिम्स डिड नॉट आस्क फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल बट ब्रिटिशर्स हैड देमसेल्व्स डन दैट जॉब। त ज़ाहिर आहे जॾहिं सूबो मिली वियो, यू गॉट अ फेवर, you were in a position to form governments in East Bengal. Muslims were very happy. Indian National Congress did not like this idea. They went for protests, they went for demonstrations, and they started Swadeshi movement. They started boycotting British goods and products, their genes and their educational system, and whatever offerings they were taking from British government, they denied all those. Muslims were happy with that. So when you are happy, when you have been given unaskable favor, इहा हिकिड़ी अनआस्केबल फेवर हुई जेका मुस्लमाननि खे मिली, या जेका उन्हनि चई ई न हुई, या जेका घुरी ई न हुई। सो इन दैट वेरी सिचुएशन दे said that now we must put forward our goodwill and good wishes to British government. उन्हनि खे वञी थैंक्स था चऊं त तव्हां असांखे सूबो ॾिनो, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। पोइ उन वक़्तु जेको हुई थैंक्स चवणु वञनि था ब्रिटिश गवर्नमेंट खे, त उहो जेको थैंक्स चवण जो जेको तारीख़ में हिकिड़ो वाक़ियो आहे असां वटि रिकॉर्ड थियल, उनखे असां चवंदा आहियूं शिमला डेपुटेशन जे नाले सां। मुस्लिम्स विया ब्रिटिश गवर्नमेंट ॾे लॉर्ड कर्ज़न सां मिलण, ऐं उनखे चवणो इहो हुयो त वी आर थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गिवन अस अ सेपरेट प्रोविंस। हाणे उहे जेके माण्हू वञनि था, जेको आगा खान 3 हुयो, ठीकु आहे, मुस्लिम लीडर हुयो, पोइ लॉर्ड मिंटो सां उनसे मिली था अचनि, उनमें कहिड़े कहिड़े सूबनि जा कहिड़ा कहिड़ा माण्हू हुया, उहो बि वरी मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां थो, त मे बि तव्हांखे ख़बर हुजे। छो जो इंटरव्यू में, छो जो तव्हां सिंध जा आहियो, दे माइट आस्क यू दैट हू वाज सिंधी पर्सन इन शिमला डेपुटेशन। हुया त 6 ॼणा, 5 वर फ्रॉम बंगाल, 1 वाज फ्रॉम बिहार, 7 वर फ्रॉम यूपी, and Bombay मां 3 हुआ, there were 4 from Madras, and there was single person from Sindh हिकिड़ो हुयो, सेंट्रल प्रोविंस मां 1 हुयो, दक्कन या दिल्ली मां 2 हुया। जेको सिंध मां हुयो उहो हुयो सैयद अलहदाद शाह। सो यू नीड टू रिमेंबर देम नेम। कि शिमला डेपुटेशन में देर वॉज ओनली 1 सिंधी पर्सन एंड देट वॉज सैयद अलहदाद शाह। उहो जेको टोटल डेलीगेशन हुयो उहे 35 माण्हुनि जो हुयो। सो देट नीड्स टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। हिते स्क्रीन शॉट जो कढणु चाहो त यू माइट टेक इट। थोरो अञा मां हिनखे अॻिते खणी अचां। नाउ मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दी बर्थ ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। बेटा मां तमामु घणियूं शयूं डिटेल्ड इन जे करे बि नथो पढ़ायां, सिंस ऑल ऑफ यू आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, यू हैव डन यूर मास्टर्स इन पाकिस्तान स्टडीज़, त तव्हांखे ख़बर आहे शयुनि जी। मां तव्हांखे डेटा प्रोवाइड कंदुसि त हुनमें ही शइ हुई, वाट एवर माइन्यूट डिटेल एंड नॉलेज एंड डेटा इज़ देयर, उहा मां तव्हांखे प्रोवाइड कंदुसि। आई एम जस्ट मेकिंग योर आइडियाज़ क्लियर दैट हाउ द थिंग्स कुड वर्क प्रॉपरली इन अ प्रॉपर शेप, इन अ प्रॉपर वे। पोइ छा थो थिए, इंस्टीट्यूशनलाइज़िंग द मुस्लिम वॉइस। पहिरियां ईअं थियो त माना तव्हां हिकिड़ो वियो उन्हनि ॾे, बंगाल पार्टीशन थियो, तव्हांखे फ़ाइदो थियो, तव्हां शिमला डेपुटेशन जे ज़रिए वियो, उन्हनि हिन खे लॉर्ड मिंटो हिननि खे चयो त बाबा तव्हां हेतिरा ॼणा मूं ॾे आया त आहियो, बट वाट वुड आई से टू ब्रिटिश गवर्नमेंट सिटिंग देयर इन ग्रेट ब्रिटेन,
त मां छा चवां 35 ॼणा आया आहिनि ऐं उहो 1,24,000 माण्हुनि जूं सिग्नेचर्स खणी आया आहिनि. दे डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट, दे डिमांड शेयर इन जॉब्स, दे डिमांड रिप्रेज़ेंटेटिव गवर्नमेंट. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सुभाणे खां पोइ 100 सिग्नेचर्स खणी ईंदा ऐं ॿिए उन खां पोइ वरी क्रिश्चियन्स कुझु माण्हू खणी ईंदा, पोइ हिंदू ईंदा, पोइ सुभाणे पोइ ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे एवरी वन विल बी आस्किंग फॉर फेवर्स. त दिस इज़ नॉट पॉसिबल थिंग. इन जे करे हिन हुननि खे सलाह ॾिनी त वाई नॉट टू फॉर्म देयर पॉलिटिकल पार्टी. बिकॉज पोइ अॻिते मूंखे इहो ईज़ी लॻंदो त आई वुड कन्वे यूर मैसेज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट देयर इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, दे आर डिमांडिंग सच एंड सच एंड सच, या सो एंड सो एंड सो. सो इन जे करे पोइ हुन जी ॻाल्हि हुननि सम्झी पोइ हुन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बुनियादु रखियो. ठीकु आहे. पर यादि रखिजो इहा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ॿी आहे. पर 1908 में जेको आहे सो या 7 में सैयद अमीर अली बि हिकिड़ी ठाही हुई, लंडन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बट दैट इज़ another political party. इहो यादि रखिजो. इहो इफ देयर इज़ question, there was a question in FPSC lectureship कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लंडन ब्रांच कीअं ठाही. त इहा सैयद अमीर अली ठाही. ऐं सैयद अमीर अली तमामु हिकिड़ो ज़बरदस्त राइटर रहियो आहे. इन जो हिस्ट्री ऑफ सारासन्स जेको किताबु आहे दैट इज़ वर्थ रीड. इफ यू गेट अ चांस त ज़रूरु पढ़ी वठिजो. देन 1908 में एक्सपांशन ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट्स टू रीइंफोर्स प्रोविंशनल जुडिशरीज़. पहिरियां हाई कोर्ट हुयूं, पोइ प्रोविंशनल जुडिशरीज़ खे बि हिननि वधीक एक्सपांड कयो. 1909 में वरी पोइ तव्हांजा मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स अचनि था. ऑफिशियली तौर ते फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स वर गिवन दी स्टेटस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, त भई हू वञनि इलेक्शन वड़नि. उहो पहिरियों भेरो थियो हुयो 1909 जा जेके तव्हांजा रिफॉर्म्स थिया हुया. आई होप सो दिस इज़ क्लियर. थोरो हेॾे अचूं ॾिसूं को अगरि आहे. देन अगेन हाणे कुझु शयूं मां बेटा तव्हांखे ॿुधायां. Imperial Legislative Council was broken down in 1909. उहो कीअं थी? टोटल काउंसिल सेट्स एक्सपांडेड फ्रॉम, उनमें जेके मेंबर हुआ 16 टू 60 ताईं हुया अंडर दी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909. जेको पंहिंजो मिंटो हुयो उहो गवर्नर जनरल हुयो, जेको मॉर्ले हुयो ही वॉज दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स. उहो सेक्रेटरी हो इंडिया जो, पंहिंजो इंडिया जे बरतानिया जो इंडियन जे अफेयर्स जे लाइ. ठीकु आहे. हाणे ऑफिशियल सीट्स हुयूं 33. ठीकु आहे. ऐं जनरल जेके नॉन ऑफिशियल सीट्स हिननि रखियूं उनमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उहे 21 हुयूं. हाणे मुस्लमाननि जे लाइ सीट्स घणियूं रखियूं? 6. हाणे अंदाज़ो लॻाइजो त वेन देयर वॉज अ इलेक्शन इन 1892 नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम गॉट इलेक्टेड. वरी 3 सालनि खां बाद जेका ॿी इलेक्शन थी 1895 में 1895 में, त उन वक़्तु हिकिड़ो पहिरियों मुस्लमान हुयो हू बिकेम दी member of Imperial Legislative Council. Do remember that this might be asked in any interview, in any MCQs, who was the first Muslim representative in Indian Legislative Council. तो वो बेटा जो बंदो हुयो that is called Nawab Salimullah of Dhaka, who became the member of Imperial Legislative Council in 1895. हाणे उहो हिकिड़ो माण्हू थियो. वरी जॾहिं उहा 98 में वरा इलेक्शन थी 1898 में नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम गॉट इलेक्टेड. हाणे उहा स्ट्रगल हुई जंहिं 1909 में मुस्लमाननि खे 6 सीट्स वठी ॾिनियूं. पहिरियां हिकु में न, हाणे 6 थियूं. देयर आर अदर थिंग्स एज़ वेल. थोरो लेक्चर जेको आहे सो डिटेल्ड थो थिए, बट आई होप सो कि तव्हां सम्झ में ईंदो. जुडिशियल इंक्लूशन एंड एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म्स. हाणे सत्येंद्र जेको प्रसन्ना सिन्हा अपॉइंटमेंट हुई when he became the first native Indian member appointed directly to the Viceroy's Executive Council. यादि रखिजो जेके असां चवंदा आहियूं SP सिन्हा, तव्हां ॿुधो हूंदो. पहिरियों इंडियन जेको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर थियो उहो हुयो SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा. इन जे करे फर्स्ट इंडियन आहे हू बिकेम द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. इंडियन, यादि रखिजो. आई एम सेइंग Indian, but when I say who was the first Muslim representative in Imperial Legislative Council, so that was Nawab Salimullah of Dhaka. Executive Council structure expanded significantly from पहिरियां 5 हुया, मुंहिंजे तव्हांखे ॿुधायो त 6 मेंबर बि एड कयूं. उहो 6 मेंबर जेको हुयो सिन्हा सर्विंग ब्रिलियंटली एज़ अ लॉ मेंबर. ठीकु आहे. त उहो 6 मेंबर मूं तव्हांखे ॿुधायो. पहिरियां 5 मेंबर हुआ जेको गवर्नर जनरल जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनमें हिकिड़ो मेंबर एड कयूं एंड दैट मेंबर बिकेम SP सिन्हा. ठीकु आहे. सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा. ॿियो, द इंक्लूशन सक्सेसफुली वैलिडेटेड द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ लोकल कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली टू ब्रिटिश लीगल पार्लियामेंटेरियंस. जॾहिं SP सिन्हा अचे थो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मेंबर थिए थो, आफ्टर देन ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग कि येस दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव, दिस माइट बी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू रन दी अफेयर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इट हेल्प्ड देम
to look into the state matters as well, and they looked it very properly. Chojo Indian people were there to offer their good services to them. Simultaneously, it paved the path towards institutionalizing separate electorate and high constitutional framework. पोइ वरी ईअं थियो त मुस्लमाननि जी जेका अप्रोच हुई, जेका रिप्रेज़ेंटेशन हुई, दिस स्टार्टेड एक्सपांडिंग, छो जो इन्हनि खे हिकिड़ी एक्सेस तमामु घणी मिली चुकी हुई. आख़िरी में एंड ऑफ एरा इहो आहे त दो मुस्लिम्स वर हैप्पी इन बंगाल पार्टीशन, बट अनफॉर्चुनेटली विद द harsh and extreme demonstrations, protests from Indian National Congress and some other organizations, the partition of Bengal was annulled in 1911. This was a serious setback to Indian Muslims because they believed that Indian National Congress has put a dagger in their back and they have been mischieved and they have been basically cheated from Indian National Congress. When Muslims were happy, what was the problem with Indian National Congress? Why did they not like the idea of separate electorate? Or if Bengal was divided, that was okay, the administration was going great. Then what was the problem? The problem was not with the division of Bengal, but the problem was with the division of economic assets and the opportunities that were given, that were being provided to Hindu subjects. So इन जे करे मुसलमाननि खे इहा शइ न वणी, and from there the partition of ways started. I hope so this is all clear to you. अच्छा, इहो जेको हुयो वरी ॿियो स्पेशली तौर ते लेट मी एड अनदर थिंग, त किंग जॉर्ज फायर जेको अचिणो हुयो, हिज कोरोनेशन सेरेमनी वाज सपोज टू बी हेल्ड इन बंगाल. त पोइ इंडियन नेशनल कांग्रेस चयो त अगरि कोरोनेशन सेरेमनी कलकत्ता में थी त असां कलकत्ता खे बाहि ॾींदासीं, प्रोटेस्ट कंदासीं. पोइ इन जे करे 1911 में ई इन भउ खां त मे बी जेके आहिनि सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जेका सो अटैक्स करे ऐं हिकिड़ो प्रॉब्लम थिए, हुननि कलकत्ता मां जेको आहे सो दिल्ली खे इंडिया जो कैपिटल डिक्लेयर कयो, एंड फ्रॉम देयर दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज annulled. This ultimately offered a serious question to Indian Muslims that now they need to think independently. This is high time, and they went for some kind of other policies and strategies which ultimately paved the way towards a separate homeland called as Pakistan today. Thank you.